جہاں سے شروع ہوئی ہے کہ پیس تھرو ریکنسلیشن آف آور ہولی بکس. اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے ریکنسلیشن، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ مفاہمت کی بات اگر کی جاتی ہے، لازمی بات ہے اس کو میری جو طریقہ ہے مطلب اسٹڈی کرنے کا، کہ اس کو اپوزٹ سائڈ پہ ہمیں تھوڑا دیکھنا ہے کہ یہ ریکنسلیشن کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی تعلق تھا اور اب وہ رشتہ یا تعلق جو ہے اس میں دراڑ پڑ گئی ہے، یا وہ کمزور ہو گیا یا ٹوٹ چکا ہے، تو پھر دوبارہ سے ریکنسائل ہونے کی ضرورت ہے، مفاہمت ہونے کی ضرورت ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ بیسیکلی تو پاکستانی ہیں ہم اور اسی ماحول میں پروان چڑھے ہیں، وہیں پہ ساری ایجوکیشن ہوئی ہے. اب موسٹلی جو اسپیکرز ہیں بے شک کچھ زیادہ تر یورپ میں ہی اب بیرون ممالک بیٹھے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارا تعلق وطن عزیز سے ہی ہے اور اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کی ضرورت بھی زیادہ ہمیں پہلے اپنے قوم میں سارے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو ان سے مخاطب ہوں کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ریکنسلیشن کا معاملہ ہے یا جو ایک عمل ہے، ضرورت کیوں پڑتی؟ اور خوبصورت بات مجھے یہ لگی جب جیسے ہی ابتدائیہ، مجھے نام اب یاد نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی جو سیدھی دل کو لگی، اور انہوں نے وہ بیان کیا کہ جو اسلام کا خدا ہے، ابراہیم کا خدا ہے، اور کرسچینٹی میں سب کو یہ بات، چونکہ ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں وہاں پر اتنی تفاوت ہم نے دیکھی ہے، تو اس لیے بہت اچھا لگا. اور جتنے بھی بعد میں سارے اسپیکرز آئے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور ان میں مطلب جو انیلا یا میرا مجھے نام صحیح طور پہ یاد نہیں، احمد قریشی صاحب، معز، اور پھر اس کے بعد البرٹ ڈیوڈ صاحب کی باتیں بھی بڑی یاد ہیں. عباس ارسلان نے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی ہے بڑا اچھا لگا ہے، اور سبتین کا نالج ہر لحاظ سے کافی زیادہ، اور پھر معاشہ جو تھے، اور ڈاکٹر انیکا نے بھی اسی طرح سے باتوں کو آگے بڑھایا ہے، اور آخری جو ہمارے اسپیکر تھے انہوں نے بھی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کم از کم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر جو ہم دیکھتے تھے اور پہلے دیکھتے تھے، مطلب جب ہم نے اسٹوڈنٹ شپ میں وقت گزارا ہے، تو بڑی ہی مشکل نظر آتی تھی، کیونکہ الزام دینا بڑا آسان ہوتا ہے اور الزام ہم ادھر سہتے رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اسپیکرز آئے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو اوریجن ہے، ہماری جو ابتدا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جو کریٹر ہے ایک ہے، ہم اسی کی مخلوق ہیں، اسی کی دستکاری ہیں. ہم تمام انسان جو آگے سیکٹس ہیں یا جو بھی مذاہب ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے بے شک انبیاء کرام آتے گئے اور وہ بتاتے گئے، جو ان کے فالوورز ہوتے اسی طرح سے آگے چلتے گئے. لیکن مسئلہ جو مین ہے ہمارے لیے، امپلیکیشن کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس نے اس کلام پر، کس نے ان باتوں پر عمل کیا ہے. اور یہ بات ہوئی ہے پہلے 2-3 لوگوں نے کی. البرٹ ڈیوڈ کا نام بار بار لیا گیا، اور کیونکہ اپلیکیشن کی باتیں ہوئی ہیں. رانا جو آپ میرے بھائی، ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے ایک جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا، وہی بات کی تھی. اور یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے ریکنسلیشن کی، ٹو ریموو انمیٹی بٹوین ٹو پارٹیز ٹو چینج تھورولی. یہی بات ہے، یہی ڈفرینسز کی بھی بات ہوئی ہے، اور
यकीनन डिफरेंसेस हैं तो सेक्ट्स में हैं, डिफरेंसेस हैं तो मज़ाहिब भी अपनी जगह वजूद रखते हैं, लेकिन उन पे अगर पॉजिटिवली बात की जाए, उन पे अगर जो हेल्दी डिस्कशन जैसे आज हो रही है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, ये बहुत जरूरी एक्सेप्टेंस जो है जिसका आप समझते हैं, हम समझते हैं कि कमी पाई जाती है, उसको बहुत ज़रूरी है बढ़ाना। और यकीनन जो ये लफ्ज़ रिकन्सिलिएशन का है, जब मैंने इसको देखा है, मतलब जो असल लैंग्वेज में ग्रीक लैंग्वेज में इसको देखा है, तो इसका मतलब भी यही बनता है एट वन मेंट, यानी एक ख्याल होना, एक जगह पे मुत्तफिक होना है। बेशक मज़ाहिब यकीनन हर किसी जो जिस मज़हब को फ़ॉलो करता है, वो उसके साथ यकीनन उसका लगाव है और उसको वो उसी की चीज़ों को प्रेफ़र करता है। लेकिन ओवरऑल चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तभी रिकन्सिलिएशन की तरफ हम आ सकते हैं। और फिर ये जो दूसरा वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीस का। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर यूरोप में या दूसरे ममालिक में, यहाँ पे भी ऐसी बातें पाई जाती हैं, लेकिन मैं तनकीद नहीं कर रहा, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को कोई बात इस तरह से बुरी लगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में इसकी बहुत ज़रूरत है और ये सबके लिए है। ये मैं सिर्फ़ किसी को भी निशाना नहीं बना रहा, लेकिन वहाँ पर ये जो पीस की बात है, अमन की बात है, मैं फिर उसको उसके तज़ाद की तरफ लेके जाऊँगा कि पीस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इंतशार आता है। तो इंतशार को आप देखें, फिर पीस की समझ आ जाएगी, ज़्यादा समझ आ जाएगी, कबूलियत की बात होगी कि हम किस तरह से इस वर्ड को ले सकते हैं। अमन की बात हम करते हैं, लेकिन पहले इंतशार कहाँ से उठता है? इंतशार हम जब अंबिया इकराम की बातें पढ़ते हैं तो लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज़, ये दिल से ख़्याल उठते हैं। और फिर ये जो इंतशार है, ये क्या? अभी वो सारे मैंने कहा था कि एस्पेक्ट्स उन पे बातचीत हो चुकी है। जब हम सुपीरियरिटी की सोच रखते हैं, अपने आप को सबसे आला मर्तबत समझना शुरू करते हैं, यही सुपीरियरिटी की दौड़ में हम इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ से आके आपकी मेंटल जो तरक्की है रुक जाती है, और फिर हम दूसरे को, ये जब हम हार्मनी की बात करते हैं, वहीं पर डिसहार्मनी जो है वो नजर आती है। तो ज़रूरी है कि उस इंतशार को पहले ख़त्म करें, फिर पीस की बात हो सकती है। ज़हनी जो इंतशार है, और उसमें वही है, बात पहले भी मैंने पहले कहा था कि जजमेंटल जब हम बन जाते हैं, अब जजमेंटल मतलब कुछ बातें सीधी शायद मुझे अब करना पड़ेंगी कि जजमेंटल हम किस तरह से बनते हैं। हमारे मैंने बाज़ दफ़ा सुना है अपने कानों से और पढ़ा भी है बहुत सारे मकाला जात में कि हज़रत आदम भी मुस्लिम थे, हज़रत इब्राहीम, सुन्नत इब्राहीमी को आप मानते हैं, मूसवी शरीयत को मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो बात है कि आप इब्राहिम को मानते हैं तो उनकी उनकी औलाद को कोई भी बंदा जो गलत कहता है, या क्रिश्चियंस मुस्लिम को गलत कहते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, या दूसरे लोग दूसरे जो, या जूस दूसरे लोगों को गलत कहते हैं, तो ये गलत बात है। जो जिसकी औलाद है उसको उसका जो हक है वो देना चाहिए। वही बात कि जब हम दूसरे की अ, 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 बात करते हैं तो अपनी तरफ पहले ध्यान करने की जरूरत है, यही बात है। और हम अपने जो रवैया जात हैं, अपनी जो अक़दार हैं, उनको हमें अपनाने की ज़रूरत है, उनको उन पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम जजमेंटल ना बने। हेट्रेड यहीं से उभरती है, और फिर वो जो हेट्रेड हेट्रेड है वो मुआशरती तफ़ावत का बायस बनती है, और फिर इसी तरह से मुआशरे बिगड़ते हैं, और फिर मज़हबी इंतशार जो है वो काफ़ी मसाइल का हमें उसकी वजह से सामना करना पड़ता है। और हम जब हज़रत सुलेमान की मिसाल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ख़ास तौर पर जब आप किसी पर भी तनकीद करेंगे,
एरोगेंट होकर या मुतकब्बर होकर या ज़हनी इंतशार आपका जब इस तरह से निकलेगा, तो फिर सख्त बातें यकीनन तबाही का बायस बनती, डिस्ट्रक्शन की तरफ हम जाते हैं। और हम हज़रत सुलेमान की एक मिसाल मैं दूँगा कि वो कहते हैं कि नर्म ज़ुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। जब आप नरम रवैया इख्तियार करेंगे, नरम ज़ुबान इख्तियार करेंगे, तो आप किसी को भी कायल कर सकते हैं अपनी बात के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जजमेंटल बनने की बात, हमारे तो मतलब बाइबल मुकद्दस में जो तालीम है, अपना इंतकाम ना लो। वही बात जो पहले भी की गई, मैं दोहरा रहा हूँ। मैं उसको कलाम की आयत के साथ कोट कर रहा हूँ कि अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो। हमें किसने ठहराया जजमेंट करने के लिए, जज बनाया है? हम किसी को जन्नती नहीं जन्नत का मुकाम नहीं दिलवा सकते, हम किसी को जन्नती इस तरह से करार नहीं दे सकते, ना हम किसी को काफ़िर करार दे सकते। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम म्याना रवि इख्तियार करें, अपनी ज़ुबान जो हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम नरमी से बात करें। और ज़ुबान के बारे में फिर वाज़े तौर पर हमारे मतलब कलामे मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो ज़ुबान है, ये हमारे जिस्म में शरारत का एक रखिए। मैं अपनी बात करना दे सकता है। याकूब हज़रत याकूब का ख़त है और उसमें ये अनाजील के हिस्से में आता है कि ये हमारे जिस्म में एक छोटा उज़्व है और ये एक आलम। यही ज़ुबान दायरे दुनिया को आग लगा देती है, ज़हर कातिल है ये। और इस ज़ुबान का जब मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ, इम्प्रेसिव बातें बड़ी हुई हैं और बड़ी तहम्मुल मिज़ाजी के साथ बातें की हैं। और काश के ऐसा मुआशरा हमारे मुल्क में अ बढ़े और ऐसी ऐसी सोच बढ़े, तो सब तरक्की कर सकते हैं, सब मसाइल हल हो सकते हैं। और यही है, हम जजमेंटल ना बने। टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात की गई है। यकीनन टॉलरेंस ही हमें जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाती है। इक्वालिटी की बात हमने देखी है। डिस्क्रिमिनेशन को जब हम रद्द करेंगे तब भी हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस। और फिर सबसे ज़रूरी बात इवैल्यूएशन, सेल्फ जिसको मैं अक्सर पॉइंट रखता हूँ कि सेल्फ इवैल्यूएशन। हमें अपनी अपनी गलतियों को क्यों हम इग्नोर करते हैं? अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने अच्छा तासुर देना है, दूसरे पे अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो उसके लिए अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। और बात वही है, बड़ी बुनियादी बात 2-3 लोगों ने दोहराई है। एल्बर्ट डेविड भाई ने की थी वो बात। और उसके बाद 2-3 लोगों ने बात की है कि मज़हब को, तालीम को आप ज़ाहिर करें, सिर्फ ज़ुबानी बयान, ज़ुबानी जमा खर्च कुछ नहीं होता। आपके अमल से, आपके कौलो फ़ेल से मतलब अ, ज़ाहिर होना चाहिए। तो फिर वो मज़हब होता है, वो फिर तालीम होती है कि आप किसी के फ़ॉलोअर हैं। अगर सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करना है तो ज़ुबानी दावे करने वाले तो दुनिया में बहुत लोग मिल जाएँगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद करें। खुदा का खौफ होगा तो फिर ही ये सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। और इस आखिर में मैं इसको कंक्लूड करते हुए एक सजेशन के तौर पर बात करना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगा, सारे लोग वेल एजुकेटेड और मतलब एक म्याना रवि के साथ सबने बात की है। और यहाँ पर ये नज़र आता है, ज़रूरत इस बात की है कि जो जहाँ पर यूथ की बात की थी, हमारी अक्सरियत आपको पता है, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पंजाब में देख लें या अंदरूनी सिंध, कहीं पर भी अक्सरियत जो हमारे उलमा हैं, जय्यद उलमा और हमारे जो मदारिस हैं, वहाँ तक इस दायरा को पहुँचाएँ, ताकि उनको पता चले कि असल इस्लाम है क्या? असल कुरान है क्या? वो उनको नहीं पता होता ना। वो हमारे मौलाना ने जो बोला है, मैं फिर कह रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ
ये मसीहियत की भी बात नहीं है। मुल्क का जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, उसकी भी वजह यही है कि हमारी जो जहालत है, हमारी जो कम इल्मी है, ला इल्मी है, उससे जब हम दूर हैं तो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें तकलीफ होती है हमेशा। पाकिस्तान में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होती है तो तकलीफ होती है। इसलिए उसकी तरक्की के लिए जरूरी है यूथ को इस तरह से प्रमोट करें। और ये जो दायरा आज हमने आज तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मुझे बड़ी खुशी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी मुतवाजन किस्म की बातचीत हो रही है। लेकिन ये बात हमें वाकई दूसरों तक, मतलब जो बात की गई है, मीडिया हो या किसी भी तरीके से, हमारे जो मुफ्ती लोग हैं उनको भी इनमें शामिल करें, ताकि वो अमली तौर पे सिखाएं अपने नौजवान नस्ल को कि हमें आगे कैसे चलना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।